السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح 11 بجے ایک بار پھر ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کیا ہے۔ آج اپریل کے مہینے کا آخری اتوار ہے۔ من کی بات ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک میں کورونا کے خلاف لڑائی صحیح معنوں میں چل رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے خلاف عوام لڑ رہی ہے، آپ لڑ رہے ہیں، جنتا کے ساتھ مل کر حکومت لڑ رہی ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست اتر پردیش میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تشکیل کردہ 11 کمیٹیوں کے صدور نشینوں کے ساتھ اجلاس کے بعد فیصلہ کیا کہ ریاست میں 30 جون تک کسی بھی طرح کے عوامی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات پر تشویش ظاہر کی گئی۔ حکم کے مطابق وائرس کی روک تھام کے لیے ناگزیر اقدام کے طور پر سیاسی ریالیوں اور سماجی تقریبات سمیت ہر طرح کے عوامی اجتماع پر 30 جون تک کی مدت کے دوران پابندی عائد رہے گی۔ چیف منسٹر کے میڈیا مشیر ایم کمار نے ٹویٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو سخت ہدایت دی ہے کہ 30 جون تک کسی بھی طرح کا اجتماع یا ہجوم جمع نہ ہو پائے۔ کورونا وائرس کے مثبت مریضوں کی ملک گیر تعداد 26,000 سے زیادہ ہو گئی اور مہاراشٹر، اتر پردیش، آندھرا پردیش، قومی دارالحکومت اور دوسرے مقامات پر تازہ کیسز سامنے آئے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ وبا کے کیسوں کی شرح نمو میں 6% کی کمی آئی۔ بعض ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی شرائط میں نرمی دیتے ہوئے مزید دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جمعے کی شام سے مزید کم از کم 56 اموات کی اطلاع ہے۔ یہ 24 گھنٹوں میں اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جس کے ساتھ ہی ملک میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 780 ہو گئی۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں یہ بات سامنے آئی ہے، تاہم مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے اعداد و شمار کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی جانب سے مرتب کردہ ٹیلی کے مطابق مرنے والوں کی ملک گیر تعداد 824 ہے اور جملہ متاثرین 26,200 ہے۔ مہاراشٹر میں ہفتے کو 811 نئے مریض سامنے آئے، جو ایک دن میں کیسوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ 24 اپریل کو جاری لاک ڈاؤن سے متعلق رہنمائانہ ہدایات پر نظر ثانی کے تحت حجام کی دکانوں، سیلون، بیوٹی پارلرز اور ریسٹورنٹس کو دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اس مسئلے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کے حکم کا اطلاق اشیاء کی فروخت پر ہے، خدمات پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی دوری کی شرط پر بعض دکانوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی، لیکن سیلونز ان میں شامل نہیں ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے بعض شرائط کے ساتھ رہائشی علاقوں میں تمام دکانیں کھولنے کی اجازت دی، لیکن اس میں مالز شامل نہیں ہیں۔ قومی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے درمیان دہلی حکومت کی کووڈ-19 کمیٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ جاریہ لاک ڈاؤن میں مئی کے وسط تک توسیع کی جانی چاہیے تاکہ اس وبا کو قابو میں کیا جا سکے۔ کمیٹی کے صدر نشین ڈاکٹر ایس کے سورین نے بتایا کہ ہندوستان میں اب بھی وبا کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحدیدات میں نرمی کا مطلب ہوگا کہ کیسز بے قابو ہو کر کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ دہلی میں کئی کنٹینمنٹ زونز ہیں، اس لیے دانشمندی اسی میں ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی جائے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ بیرون ملک میں کووڈ-19 سے مرنے والے ہندوستانی شہریوں اور OIC کارڈ ہولڈرز کی نعشیں وطن واپس لائی جا سکتی ہے، لیکن متعلقہ رہنمائانہ خطوط کی سختی سے تعمیل ہوگی۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایئرپورٹ حکام کو مختلف سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے اس سلسلے میں مقرر کردہ پروٹوکول کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بیان کے مطابق وزارت داخلہ اور وزارت صحت کی جانب سے میت لانے کے سلسلے میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے جو معیاری طریقہ کار مقرر کیا ہے، اس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ راجستھان ہائی کورٹ میں ضمانت کی ایک درخواست پر آن لائن سماعت کے دوران ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکیل بنیان پر جج کے روبرو پیش ہوئے، جس پر ہائی کورٹ کے جج نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ درخواست ضمانت کی سماعت کرنے والے راجستھان ہائی کورٹ کے جے پور بینچ کے جسٹس سنجیو پرکاش شرما نے وکیل پر مناسب لباس اور یونیفارم زیبتن نہ کرنے پر اعتراض کیا۔ عدالتی احکامات کے مطابق وکیل رویندر کمار پالیوال نے ایک ملزم گجر لال رام کی درخواست سے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ جج اس درخواست کو مسترد کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد ازاں پبلک پروسیکیوٹر کی استدعا پر درخواست ضمانت کو مسترد نہیں کیا۔ پبلک پروسیکیوٹر نے جج سے استدعا کی کہ وکیل دفاع کی یونیفارم نہ پہننے کی غلطی کی سزا ملزم کو نہ دی جائے۔ اس پر جج نے درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے سماعت کو 5 مئی تک ملتوی کر دیا۔ ساری دنیا میں کورونا وبا کے خلاف جاری جنگ اور لاک ڈاؤن کے درمیان عالم اسلام میں رمضان کا آغاز ہو گیا اور خاص طور پر ہندوستان میں پہلا روزہ پابندیوں کے درمیان گزر گیا۔ مسلمان اپنے گھروں میں ہی بند رہتے ہوئے روزے کا اہتمام کیا۔ سحر اور افطار کا اہتمام بھی گھروں میں ہی کیا گیا۔
बाजार मुकम्मिल बंद थे। आम तौर पर माह रमजान में रमजान की तमाम रौनक बाजारों में ही दिखाई देती है। इस मर्तबा हर तरफ सुनसान और वीरान मंजर नजर आ रहा था। दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल कुआं इलाके के मुतवत्तिन बुरहानुद्दीन ने बताया कि यह पहला रमजान है कि तमाम मुसलमान अपने घरों में ही बंद रहते हुए इबादत में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इफ्तार के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में रोजदारों का हुजूम नजर आता था। अब मसाजिद पूरी तरह से वीरान हो गई है। लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें और बाजार बंद है। हुकूमत से तौक़्क़े है कि माह रमज़ान में कम से कम लोगों को अशिया ज़रूरिया की किल्लत ना हो, इसलिए लॉकडाउन में नरमी दी जाएगी। अगरचे कि हुकूमत की जानिब से गैर हॉट स्पॉट इलाकों में चंद मखसूस दुकानें खोल देने की इजाज़त दी गई है। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने कुछ ऐसे फ्रूट शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की जानिब से फल की दुकान के बैनर लगाए थे। जमशेदपुर पुलिस का मानना है कि दुकानदारों के खिलाफ हिंदू शब्द लिखने की वजह से इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये अवाम में दूरी पैदा कर रहे हैं। दुकान पर लगे बैनरों पर लॉर्ड राम और शिव की तस्वीरें हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को इनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर प्रोफेसर शाहिद की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया है। गुज़िश्ता 1 अप्रैल को इलाहाबाद के तबलीगी मरकज़ से 30 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार शुदगान में 16 गैर मुल्की अफराद भी शामिल थे। इस गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को इनकी अहलिया समेत पुलिस ने रिहाइशगाह से हिरासत में लिया था। पुलिस का इल्ज़ाम था कि उन्होंने निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में होने वाले मजहबी इज्तिमा में शिरकत की थी। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि ऐसे हालात में जबकि पूरे मुल्क में 1 माह से लॉकडाउन जारी है और लोगों की ज़ाती कमाई सिफर पर जा पहुंची है और अहले खैर अफराद समेत हुकूमत भी ज़रूरतमंदों को खाना व दीगर अशिया तकसीम कर रही है, ज़रूरत इस बात की भी है इन अफराद की तरफ भी तवज्जो की जाए जो अहले इल्म हैं, इन ज़राए के ज़रिए मदद हासिल नहीं कर सकते जिनसे आम लोग मदद हासिल कर रहे हैं। इनमें एक बड़ी तादाद ऐमा मसाजिद मौज़नीन की भी है जो हकीकत में ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं और ना ही किसी से अपनी परेशानी का तस्करा कर पाते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि लॉकडाउन के सबब पैदा होने वाले हालात में इनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए, जो नेशनल वक्फ काउंसिल के ज़रिए पूरे मुल्क के वक्फ बोर्ड्स को पाबंद कर सकती है कि वो ऐमा मसाजिद और मौज़नीन की किफ़ालत करें और इन्हें माह रमज़ान में एक ऐसी रकम अदा करें जिससे इनका गुजारा बेहतर तरीके से हो जाए। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस का शिकार मजीद 9 अफराद फौत हो गए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने 1197 नए केसेस की तस्दीक की है। मुमलिकत में अब इस मोहलिक वबा का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 16,299 हो गई है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने बताया कि कोरोना वायरस से महलूकिन की तादाद 136 हो गई है। अमेरिका में मोहलिक बीमारी से मुतासर अफराद की तादाद 9 लाख से मुतजाविज कर गई है, जबकि आज महलूकिन की तादाद 52,000 के करीब हो गई है। वबा के फैलने के बाद से अब तक जुमला 9,05,330 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें 51,950 हलाकतें हो चुकी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 वबा से 3,332 अफराद हलाक हो गए हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया के 18 ममालिक में कम व बेश 10 लाख रोजदारों को इफ्तार कराने के लिए मख्तस बजट में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर दावत व इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज आल शेख ने शाह सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़ा इफ्तार कराने का मनसूबा सऊदी अरब की तरफ से हर साल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल शाह सलमान ने कोरोना बहरान के बाद अपने मुसलमान भाइयों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मख्तस बजट में इजाफे की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा 18 ममालिक में सऊदी सिफारतखानों और इस्लामी मराकिज़ की निगरानी में होता है। मोहलिक बीमारी के फैलाव के दरमियान एक बैन विजारती मरकजी टीम ने तेलंगाना का दौरा करते हुए मोहलिक बीमारी की सूरत हाल का जायजा लिया। इस टीम की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी वजारत जल शक्ति अरुण बड़ौका ने की। मरकजी टीम ने हुकूमत की जानिब से रियासत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश की। एक सरकारी इलामिया में यह बात बताई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के फैलाव को रोकने के इक़दाम की तफसीलात से इस टीम को वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी ने टीम को मुतला किया कि रियासत के तमाम महकमाजात एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और सभी ने मिलकर कोरोना से निपटने की एक हिकमत अमली तैयार की है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब मुसलमानों के लिए अनाज पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम के सिलसिले में तरीक़ेकार को खतियत दें। बौसूख ज़राए के बमुजिब चीफ मिनिस्टर ने हर साल अपनी दावत इफ्तार और रियासत भर की मसाजिद में दावत इफ्तार और गरीबों में गिफ्ट पैकेट की तकसीम से मुतालिक बजट को रमज़ान मुबारक में अनाज की तकसीम के लिए खर्च करने से इत्तफाक किया है।
चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के लिए 1 करोड़ 83 लाख रुपए और मसाजिद में इफ्तार और कपड़ों की तकसीम के लिए 66 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। अब जबकि कोरोना लॉकडाउन के दरमियान रमजान मुबारक का आगाज हुआ और वायरस के फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन में तोसी के इम्कानात है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने गरीब मुसलमानों में अनाज और जरूरी अशिया की तकसीम से इत्तेफाक किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में है और वो भूखा है, इसे ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो फौरी तौर पर जीएचएमसी के कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल कर सकता है और किसी पशोपेश के बगैर ग़िज़ा की फराहमी के लिए कह सकता है। इसके लिए 0402111111 पर कॉल करना होगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस ऐलान के बाद साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने जीएचएमसी के कॉल सेंटर नंबर को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया है, जिससे अवाम में इस ताल्लुक से मालूमात पैदा हो सकेंगी। शहर हैदराबाद में पुलिस की लाठियों से माजूर हो चुके कलीम की बीवी ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। शाहजहां बेगम जो गुज़िश्ता रोज पुलिस की मुबैना मारपीट में जख्मी और माजूर होने वाले कलीम की बीवी है, उन्होंने कहा कि बगैर कोई गलती और कसूर के पुलिस ने इनके शौहर पर लाठियां बरसाई और एक पैर तोड़ दिया। शाहजहां बेगम के मुताबिक 22 अप्रैल की रात इनके शौहर मकान के बाहर ठहरे थे। इस दौरान 2 लड़के वहां से दौड़ते हुए गए, जिनके पीछे पुलिस थी। पुलिस ने जैसे ही कलीम को देखा, बिला कोई वजह इन पर टूट पड़ी और बड़ी बेरहमी से शदीद ज़दोकोब कर दिया। खातून ने बताया कि शौहर को जख्मी हालत में लेकर जब वो उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंची तो कोई इनकी मदद के लिए तैयार नहीं था और डॉक्टरों ने भी रुस्वाकुन रवैया इख्तियार करते हुए इनके शौहर के इलाज में ताख़ीर की। शाहजहां बेगम का मकान अंसारी रोड शेख की मस्जिद मुस्तफ़ा नगर में वाक़ है। घर पर 2 मासूम बच्चों को छोड़कर खातून शौहर के इलाज के लिए दर बदर भटक रही है। यह इलाका साइबराबाद कमिश्नरेट के मैलारदेवपल्ली पुलिस हुदूद में आता है। उन्होंने खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई और शौहर से इंसाफ का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर अमल आवरी के दौरान पुलिस मुलाजमीन का रवैया शहरियों में खौफ का बाज़ बना हुआ है। फ्रेंडली कम्युनिटी पुलिसिंग की अमल आवरी में मुनफरिद शिनाख्त बनाने वाली सिटी पुलिस अब खुद अपने रवैये से फ्रेंडली पुलिसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। लॉकडाउन में शहरियों से पुलिस की गुफ्तगू और तर्ज अमल और शुमाली हिंद के पुलिस स्टाइल को भी पीछे छोड़ गया है। हद तो यह है कि सिटी पुलिस लॉकडाउन पर अमलावरी के दौरान कमिश्नर पुलिस की हिदायत की परवाह नहीं करती। आला पुलिस ओहदेदारों के कौल और मातहत ओहदेदारों के अमल में काफ़ी तजाद है। सिटी पुलिस पर दिन ब दिन जानिबदारी के इल्ज़ामात भी पाए जाते हैं और गाड़ियों की जब्ती के दौरान ख़वातीन के सामने मर्दों को रुस्वा किया जा रहा है। लॉकडाउन में दवाखानों में तशख़ीस और ज़रूरी अद्वियात और अशिया के लिए मकानात से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पुराने शहर के बीबी बाजार चौराहे पर 2 हामिला ख़वातीन जो मर्द हजरात के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे, इन्हें रोक लिया गया और बेयार और मददगार पैदल मकानात को रवाना किया गया। इनकी पर्चियां बताने और हकीकी वजूहात को वाज़ेह करने के बावजूद इन्हें रुस्वा करके पैदल रवाना कर दिया गया। ख़वातीन ने सवाल किया कि वो भला तन्हा किस तरह मकानात से बाहर आ सकती है, इन्हें दवाखाने से रुजू होना ज़रूरी है। इसके बावजूद पुलिस मुलाजमीन खातून की फरियाद सुनने भी तैयार नहीं है। बाज़ मुकामात पर चेहरे और हवाले देकर इन्हें कार्रवाई के बगैर छोड़ देने की भी सिटी पुलिस पर इल्ज़ामात पाए जाते हैं। अब जबकि माह सयाम का आगाज़ हो चुका है, ऐसे में पुलिस मुलाजमीन का रवैया इंतहाई अफसोस और हरासानी का सबब बना हुआ है। शहरियान हैदराबाद ने सिटी पुलिस के रवैये में तब्दीली पर जोर दिया है और साथ ही शहर हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदों से भी मुतालबा किया है पुलिस के सामने खड़े हों और इनसे सवाल करें कि अवाम को इस तरह की मुश्किलात में क्यों डाला जा रहा है। अवामी नुमाइंदे तो पुलिस के आह भगत में मसरूफ़ हैं। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोरोना के सिर्फ 7 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। इस तरह से तेलंगाना में जुमला मुस्बित केसेस की तादाद 990 पर पहुंच गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में मुस्बित केसेस की तादाद 1000 को अबूर कर चुकी है। आज जो 7 नए केसेस तेलंगाना में सामने आए, इनमें से जीएचएमसी के हुदूद में 6 और वरंगल में 1 शामिल है। आज किसी मरीज के मरने या डिस्चार्ज होने की इत्तला नहीं मिली। रियासत में फिलहाल 658 कोरोना के सरगर्म केसेस मौजूद हैं।